पैसा कमाने के लिए तो 4 गुण चाहिए, लेकिन उस पैसे को संभालने के लिए 40 गुण चाहिए। और उस संभाले हुए पैसे को सही जगहों पर लगाने के लिए 400 गुण चाहिए साहब। डोंट जंप इनटू अदर गाइस बिजनेस विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ दैट चैलेंजेस और अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्योंकि कोई आपको सब कुछ नहीं बताता है। Some policies, some strategies, a strict set of rules and regulation, the discipline, that is all this financial consultancy is all about. Hello, Namaste and Jai Hind. Welcome to yet another episode of Success Habits. In conversation with me, life coach समीर अजमानी। ऐसे लोगों की कहानी, उन्हीं की ज़बानी मैं आप तक पहुंचाता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अभ्यास से जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है और आज दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। टुडे आई हैव द प्रिविलेज of sitting down with a remarkable individual who wears multiple hats in the world of business and literature. He's not only a successful entrepreneur but also a first-time author. He loves acting and has done few cameo roles in web series and movies, commercial ads too. Through his entrepreneurial journey, he gained valuable insights and experiences that culminated in the publication of his debut book and is now educating people on financial management. So without further ado, I bring to you this postgrad in international trade from IIFT Delhi and an author, Mr. Tarun V. Kapoor. Welcome, Tarunji. Thank you. Thank you. Delighted to have you with us today. Yeah, same here, likewise. So Tarunji, first and foremost, Yeah. tell us about your entrepreneurial journey and what inspired you to start your own business. Right. Long back, I started with exports, and that was along with my father. 1991, 92, there were not many exporters, and it was not very competitive. Yeah. And most of the time, we did that. And thanks to that trade, that it made me travel to over 40 countries. 40 countries, huh? And it was a delightful experience because you know, get to explore the new cultures, and you have to develop the things according to that country's taste. Thereafter, I shifted to constructions, and we used to make 2-storied houses on an individual plot, and that was also good experience, money making also. And thereafter, we came into finance industry. हाँ, तो क्या challenges रहे उस समय, you know, when you started off your business, and how did you kind of overcome it? See, that was comparing to today's world, we can say it was a primitive era, because now with digitalization, it's not very difficult to find the buyers. Although, yeah, I agree that it is for everyone using those tools. Yeah. तो competitive थोड़ा हो जाता. But you know, those days we used to do hit and trial, traveling to remote countries and participating in the trade fairs. Sometimes spending a lot on sampling, and you never know the person on the other side who's writing the facts. Email bhi nahi hota tha, who's writing the facts, whether he's a genuine buyer or he's just, you know, gathering samples and all. Yeah. These kind of starting challenges were there, but as all the other exporters, we too overcame those. And in construction also, you know, monitoring part was very difficult. आज तो आप अपनी construction site पे cameras लगा के और travel भी कर रहे हैं तो देख सकते हैं. So that time, you know, you have to run around a lot to do the monitoring and all. You got to be physically present there. Yeah, that was there. Those kind of challenges were there. Normal business challenges, और बिना challenges के तो business होता भी नहीं है. Very rightly said. Yeah. Tarunji, entrepreneurship often comes with uncertainty and risk भी बहुत होता है, like you rightly said. एक personal story या moment share करिए when you faced a significant setback or failure in your business, और फिर bounce back कैसे किए? हाँ, तो as in this past query I told you कि you never know what kind of person is there on the other side. So similar situation happened in my business, and we connected with a buyer, and we started with few shipments. But then there came a situation where, you know, he called for the shipment on the DP basis, which is a technical term called document against payment. So when the goods reach that shore, then he sends the payment through bank, but your goods have already reached there. Yeah. So it was a big shipment involving a lot of money, and
things were going okay. I would not say super fine, were okay because some portion आप trust करते हो कि नहीं यार buyer कहाँ जाएगा, पैसे तो दे ही देगा. But you know that guy, he kind of held us as hostage, like kind of you can use the word blackmailing. Oh. Ki, please release the shipment first, then I'll give the payment. Then I did my findings and I came to know that he has done this with others as well. Then we tried to find other ways to get out of it. And after a few months of struggle, like I look for another buyer in another country, then I transship my shipment to that country. But that was an ordeal, a trauma which continued for 4 to 5 months because huge investment was involved, and the entire investment is not always yours. Partly it is vendors' money, markets' money, banks' money, and some of your money. But ultimately, it is you, na? Your face is there. You are answerable to everyone. They will say, "We don't know your buyer. You give us your money, our money back." So, उसमें that was a challenge, and it was a big learning also. कि उसके बाद जितनी भी shipments गई, फिर हमने उसमें ECGC cover लिया. अच्छा. There is a agency called Exporters Credit and Guarantee Corporation, and they cover you. It is like an insurance. Then even if the buyer goes default, they will pay you. So this should be a careful step to be taken. Interesting. और if I were to ask you, करियर का सबसे गलत निर्णय क्या रहा? अच्छा, तो गलत निर्णय देखिए, थोड़ा गलत कह सकते हैं उसको कि from my original business of exports, we shifted to this real estate. Construction. Not just construction, but it was like, you can say, as a developer, there was a friend and they were 4-5 people in a group, and they had a company, and I used to meet them on and off, and बात होती थी क्या चल रहा है. तो मैं हमेशा, because grass on the other side is greener, मैं हमेशा ये देखूं यार, मेरी तो $50,000 की शिपमेंट गई है, तो तब डॉलर भी 50 रुपए था, तो 25 लाख रुपए हो गए, उसमें 10-15% बचा भी लिया तो 3-4 लाख रुपए. एंड ये साहब बोलते हैं कि जी अभी हम एक 12 स्टोरीड बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें इतने लाख स्क्वायर फीट एरिया है और इतना. तो दैट ऑलवेज यूज्ड टू कि यार ये क्या मैं कर रहा हूँ, पेनीज एंड पेनीज, and they are doing a big turnover. Yeah. So then he asked for some finance, and I had some surplus, so I financed them. Then he said, why don't you come on board? Then I joined them, and after joining them, I realized कि वही बात कि grass on the other side is greener. So they were actually, going unstoppable without caring for the consequences. तो बहुत सारे मुझे लगा कि ये प्रोजेक्ट्स इन्होंने मल्टीपल स्टार्ट कर लिए हैं, खत्म नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, दोज हु आर बुकिंग दीज थिंग्स विद यू. तो दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि स्टार्ट तो मैंने ये सोच के किया था कि पैरेलल रन कर लूंगा, पर पैरेलल होता नहीं. अब यू कांट फोकस सो मच ऑन 2 थिंग्स. आप जस्टिस एक के साथ ही कर पाएंगे. तो मेरा वो छूट गया एक्सपोर्ट्स, और मैं इधर आ गया. आने के बाद जो 1-1.5 साल में रियलाइज हो गया, लेकिन क्या होता है ना कि गेटिंग इनसाइड इज नॉट दैट टफ. आप आ तो सकते हो, लेकिन sustaining is difficult. Sustaining and then exiting that thing and going back to your own original business, that is very difficult. फिर आप वापस इतनी आसानी से नहीं जा सकते, आप entangled हो जाते हो ना बहुत सारी चीजों में. So that I would say was a major wrong decision on my part. तो on going further on this, आप क्या बोलोगे, वो 3 गलतियां कौन सी हैं जो एक entrepreneur लाइफ में नहीं करनी चाहिए, out of your experience of the total business career that you've had? पहली तो यही है कि don't jump into other guys' business without knowing the details of that challenges और ultimate profitability क्या है, क्योंकि कोई आपको सब कुछ नहीं बताता है. जब अगर उसको आपको इन्वॉल्व करना है तो वो आपको खाली ग्रीनर साइड दिखाएगा, और अगर उसको he wants to get rid of it तो वो सडनली आपको अपनी लॉस मेकिंग चीजें बताने लग जाएगा. तो आप उसमें आप सर्वे कर लीजिए, ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, अपनी वर्किंग कर लीजिए. एक तो ये है. सेकेंडली एक चीज ये होती है जो कि बिजनेसमैन ना भी हो तो कई जो पैसिव इनकम करते हैं या अपना पार्ट टाइम इनकम जो करते हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, तो ये इसको मैं हिंदी में आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा एक जानकार था, वो कहता है जी बस एक डील आई है, मेरे पास पूरा पैसा तो नहीं है, मैं ऐसा करूंगा दरवाजे में टांग तो अड़ा ही दूंगा मैं. तो मैंने वो डील तो ब्लॉक करी. और बाद में लेटर ऑन तो मुझे पता है कि डोर खुल ही जाना है, एंड आई विल गेट टू एंटर इनसाइड दैट एरिना एंड आई विल आल्सो अर्न.
नो, दिस इज ऑलवेज नॉट ट्रू. मे बी 1% केसेस में हो सकता है कि टांग फंस भी सकती है. अरे दरवाजा अगर बंद हो गया तो योर फुट विल बी क्रश्ड Yeah. देयर. तो दिस इज मिस्टेक और रॉन्ग माइंडसेट, आई वुड से. एंड thirdly यही है कि डोंट बी greedy after super normal profits. हाँ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बताई जाती हैं पर होती नहीं है. वो थ्योरी में है कि एनी काइंड ऑफ बिजनेस आप ले लीजिए, शेयर मार्केट है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, एल्गो है, और बहुत चीजें लोग बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, बट थ्योरेटिकली यस इट इज पॉसिबल फॉर समवन टू अचीव दोज नंबर्स, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. Interesting thoughts. And Tarun ji, we've now seen you on social media talking a lot about finances and how not to lose money. Yeah, tell us about this current profile as a financial consultant and the courses that you've created on financial management for young entrepreneurs. I appreciate and admire the other finfluencers or the financial influencers also. लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि सब लोग इनकम जनरेट करने की बात कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और कोई ये इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है. लोग खुद, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भाई साहब अगर आपको उस प्रॉफिट को लेने के चक्कर में अगर आपको मेजर लॉस हो गया तो क्या. आपके पास उतनी स्ट्रांग बैकबोन है, उतनी सस्टेनेबिलिटी है कि आप वो लॉस ले सकते हैं. अगर नहीं ले सकते हैं तो पहले आप उसको सेफगार्ड कीजिए. एक मैं बात आपसे यहाँ शेयर करूंगा जो मेरे फादर किसी से कह रहे थे. मैं आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम एंड कहीं क्लब में गए, कुछ फाइनेंशियल डिस्कशन हो रहा था, लेकिन मेरे आज तक वो माइंड पे वो ऐसी छप गई वो बात. वो कह रहे थे जी देखिए साहब, पैसा कमाने के लिए तो 4 गुण चाहिए, लेकिन उस पैसे को संभालने के लिए 40 गुण चाहिए, और उस संभाले हुए पैसे को सही जगहों पर लगाने के लिए 400 गुण चाहिए साहब. तो वंडरफुली सेड. दैट इज द मेन थीम ऑन विच दिस फाइनेंशियल कंसल्टेंसी इज बेस्ड ऑन. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट. कि मैं चाहता हूं कि आपको किसी तरह से वो सारी चीजों से अवगत करा दूं कि आप लॉस से बचिए. प्रॉफिट तो आप कभी ना कभी कर ही लोगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है. आई डोंट डाउट योर टैलेंट्स. बट देखो, लोग एक्टर बनने भी जाते हैं तो एक कोई सुपरस्टार बनता है और 2 लाख फेलियर्स होते हैं जो इंडस्ट्री छोड़ गए, कुछ कुछ काम कर रहे हैं. वो 2 लाख लोगों की स्टोरी कोई नहीं जानता. आप उस 2 लाख में ना शुमार हो जाओ. तो उससे बचने के लिए आपको यू नीड टू हैव अ डिफेंस मैकेनिज्म, सम पॉलिसीज, सम स्ट्रेटजीज, अ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, द डिसिप्लिन. दैट इज ऑल दिस फाइनेंशियल कंसल्टेंसी इज ऑल अबाउट. देखिए, ये बेस इस पे ही करके बनाया है कि बहुत आजकल इतने गिमिक्स हैं, इतनी एक नॉन ट्रांसपेरेंसी है, एंड पीपल समटाइम्स दे गेट ट्रैप्ड एंड दे लूज देयर मनी. So we have, created the courses on financial advisory platform. We have created 3 different courses. One is called FDI, not foreign direct investment. It is fraud detecting IQ. Oh. And second is how to never lose money. And third is the dark realities of real estate. तो basis इनका यही है कि जो भी जैसे इन द पास्ट जर्नी जैसे देखा, जैसे हमारे साथ भी हुआ, इवन आई गॉट स्टक समवेयर, माय मनी गॉट स्टक इन अ प्रोजेक्ट, बट वी रिकवर्ड इट ऑल्सो. मगर वो रिकवरी और फंसने के बीच में जितनी आपको टेंशन, जद्दोजहद, जितना मारा मारी, वो और किसी के साथ ना हो, क्योंकि मिल भी गए, आपको 10 साल लग गए, आपने इतने एफर्ट कर लिए. तो उसको सब चीजों को माइंड में रखते हुए सबको फिल्टर करके ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाल के हमने ये 3 कोर्सेज क्रिएट किए हैं. इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस दिले नादाने खुद से धोखे खाए हैं, जो मसले खुद नहीं समझा औरों को समझाए. क्या बात है, क्या बात है. वेरी नाइसली सेड. Tarun ji, what's the best financial advice that you ever received? One you've shared, that your dad shared with you. और ऐसी क्या फाइनेंशियल एडवाइस आपको मिली जो आपको लगता है कि ये बढ़िया थी? देखिए, it is again the continuity of what I have said. The best financial advice that I ever received, and the same I would share with you, is कि पैसा खोने के सिर्फ और सिर्फ
दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है पैसा खोने का. देयर आर ओनली टू वेज इन विच यू कैन लूज मनी एंड दोज टू आर ग्रीड एंड फियर. Greed and fear. ग्रीड एंड फियर. Okay. अगर ग्रीड एंड फियर आप छोड़ सकते हैं तो आपका पैसे का नुकसान तो नहीं होगा, और कुछ भले ही हो या ना हो. क्योंकि दीज टू थिंग्स, दे पहले आप ग्रीड में पैसा खो बैठते हैं, अब जब खो गया उसके बाद उसकी रिकवरी करनी है, अब आप फियरफुल हो जाते हैं. तो तब फियरफुल होके आप उसकी रिकवरी नहीं कर पाते, तो वो अल्टीमेटली वो चला गया, वो आपका जो प्रोजेक्ट था या जो अमाउंट था वो लॉस एंजलिस हो गया. Total loss. Interesting. Very nice one. And what's the worst financial advice that you ever received? देखिए वर्स्ट तो वैसे तो वही वाली है वर्स्ट, कि वो जो हम उसको बहुत स्मार्ट समझते थे, जो हमारा दोस्त था और वो कहता था जी दरवाजे में टांग तो अड़ा ही दो. तो ये एक गलत तरीका है, ये वर्स्ट है. और जैसे एक और मैंने अभी सुना, कहीं किसी ने यूट्यूब पे बोला कि शेयर्स तो ऊपर जाने ही जाने हैं, आंख बंद करके कोई सा शेयर उठा लो, और या शेयर ना हो, म्यूचुअल फंड हो, वो ना हो, एनीथिंग. ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाना है. बहुत से शेयर्स हैं जो बहुत नीचे, क्या येस बैंक एग्जांपल है, बहुत से म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि माइनस में चल रहे हैं, 30-40% माइनस चल रहे हैं, जो मैं आपको बिल्कुल उसमें दिखा सकता हूँ पोर्टफोलियो में. प्लस दीज जितने भी एक वही ग्रीन ग्रास वाली बात है. तो दैट इज द वर्स्ट एडवाइस दैट आई एवर रिसीव, के दरवाजे में टांग मत अड़ाओ, आप ड्यू डिलीजेंस करो. इफ यू फाइंड इट ओके एंड डोंट हरी अप. आप थोड़ा टाइम लीजिए, उसको स्टडी कीजिए, समझ में आए तो कीजिए. क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिस ही तो हो जाएगी ना. वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. फिर दूसरी आएगी, जब दूसरी आएगी तो आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे. आपके पास पुरानी मिस भले ही हुई हो, लेकिन पुरानी का एक्सपीरियंस आपके साथ होगा. सेकंड में आप यू विल एक्सेल मोर, यू विल परफॉर्म वेल. Wonderfully said. Yeah. Very nicely said. And what we've seen, Tarunji, in today's world, almost 90% of the businesses and startups don't go beyond 5 years or so. What would you say is a blueprint to creating a successful startup? Yeah. देखिए, that would depend on person to person, के from what age group he belongs to and what is his expectation from the startup. But don't be, over demanding, or don't be that greedy, because startup की आप स्टोरी सुनते हैं, उन जिनकी वो स्टोरीज हैं उनको खुद भी नहीं पता था कि ये जो 5-7 करोड़ के सीड फंडिंग से स्टार्ट हो रहा है वो 400 करोड़ पे पहुंचेगा, या उनको भी नहीं पता था. वो what the destiny has in store for you, that you never know. लेकिन आप आज ही उसको बेंचमार्क मान लेंगे तो आप बिल्कुल फेलियर हो जाएंगे, या फिर आप योर दैट इमोशंस विल बी इफेक्टेड, कि अरे ये तो मैंने तो सोचा था कि ये 2 साल में 500 करोड़ होगा. ऐसा नहीं है. देखिए, एक किसी भी नॉर्मल बिजनेस को ले लीजिए, उसमें 4% की मंथली रिटर्न तक आती है, तो साल की 50% हो गई. अब आप कोई एक न्यू कॉन्सेप्ट लाए हैं, तो आप उस 50 को 200-300 मान लीजिए. हैव अ रियलिस्टिक फिगर इन योर माइंड. तो एक रीजन तो यही है कि रियल हीरो बनने की जगह लोग अनरियल हीरो बन जाते हैं, अनरियलिस्टिक फिगर्स पे माइंड में रख के चलने लग जाते हैं. अब दिमाग में तो 500 करोड़ का प्रॉफिट है, उस हिसाब से खर्चे तो 50 करोड़ के रेशियो में चल रहे हैं, और वो पहुंचा नहीं 20-25 भी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, जो लॉस होना नहीं था. एक आपकी मेंटालिटी से या माइंडसेट से हो गया. दूसरा ये भी होता है कि 4 लोगों ने स्टार्ट किया, तो जो आइडिया लाया वो सोचता है सब कुछ मेरा है, जिसने जो वर्किंग कर रहा है वो सोच रहा है मेरा है. अरे यार, आप ये क्यों नहीं सोचते कि भाई आज अगर मेरा ही होता तो मैं अब तक ना कर लेता. आज तक मैंने क्या कर लिया जो मैं अब ये सोच रहा हूं कि ये मेरी वजह से हो रहा है. ये मत सोचो. क्रेडिट बाकी तीनों को दो, वो तीनों आपको दे. दूसरा बंदा पहले को दे क्रेडिट. आप ये सोचो, यार मैं कहीं जॉब में 2-3 लाख रुपए कमा रहा था, यहाँ मेरे को 10 लाख आ रहे हैं, तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय द जर्नी. वी आर हियर ऑन दिस अर्थ फॉर 60-70 और 80 years. उसमें आप ब्लेम गेम और हैविंग द एंटायर केक के चक्कर में आपका इतना खूबसूरत स्टार्टअप जो है, इट विल गो डाउन द ड्रेन. So what you are saying basically is one needs to focus on the process and work as a unit, as a team. Yeah. Don't focus too much on the end
result, which Absolutely. will anyhow come as you progress. देखिए टीम वर्क का तो कोई सामने वाला कोई टक्कर ही नहीं दे सकता उसमें। आप यही सोचो यार, कभी मैंने पास दिया आपने गोल कर दिया, कभी आपने पास दिया मैंने गोल कर दिया, वो गोल तो टीम के खाते में ही ऐड हो रहा है। तो टीम शुड बी अ विनर, प्रोजेक्ट शुड बी अ विनर। स्टार्टअप स्टार्ट होते ही आप स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है, ये प्रोजेक्ट के लिए बुरा है। इंडिविजुअल बेसिस पे सोचना बंद कर दीजिए। Any regrets, Tarun ji? देखिए एज सच आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ। आई हैव डन वेल। छोटी मोटी स्मॉल मिस्टेक्स होती हैं जिसको पहले तो रिग्रेट कभी करते थे 10-15 साल पहले, अब ये रिग्रेट इसलिए नहीं होता कि अब मुझे पता है कि some things are destined. If you will go back in time and again that thing comes in front of you, you will do the exactly same that you have already done. There is no other way that you would have done. Learn. And there's no other way you would have learned. Stop regretting. और इसको ऐसे भी कहते हैं, कई जगह मैंने स्पिरिचुअलिटी में सुना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है चल रहा है, देख यू आर एन ऑडियंस, आप हॉल में बैठे हो मूवी देख रहे हो, भाई साहब आप चेंज कुछ नहीं कर सकते। किसी ने आप पे झूठा केस कर दिया, आप कहीं फंस गए, आप विक्टिमाइज हो गए, उसको सर पकड़ के मत रोइए। ये आप ऑडियंस है, आप मूवी देख रहे हैं, मूवी चल रही है, आप क्या ही कर लोगे। आप खाली अपने एक्शंस ठीक रखो, अपने इमोशंस ठीक रखो। फिल्म में भी तो देखते हो ना, वो गाड़ी खाई से गिर रही है तो आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो, आप उसको रोक तो नहीं सकते ना गिरने से। आप खाली अपने इमोशंस, कोई ओवर इमोशनल हो सकते हो या नॉर्मल रह सकते हो, वही आपको लाइफ में भी करना है। Keep moving forward again. That's the name of the game. Absolutely. तरुण जी, आपकी जिंदगी की फिलॉसफी क्या रही है? And how does it guide your decisions and actions? देखिए फिलॉसफी मेरी ओवरऑल यही रही है कि हैप्पी गो लकी, डोंट थिंक टू मच एंड डोंट रिग्रेट। और आप जितना कर सकते थे उतना आप कर ही रहे हो, उसी के आप न्यू वेज न्यू चीजें सोच लो, लेकिन आप अपने को लाइफ को भी आप जीते रहो, जिसको मैं ये कहूंगा कि मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। I like that. I like that. अब तो now you're an author also. So ये बुक लिखने का ख्याल कहाँ से आया and who motivated or inspired you to write this book? देखिए क्या होता है ना, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपके माइंडसेट पे छप जाती हैं और कभी आपको रह रह के वो याद आती हैं, और कभी आप अकेले हो तो वो उसकी एक एक्सटेंशन बनती चली जाती है। तो वही सब मैं सोचता था कि कभी मैंने वो चीज़ कहीं जिक्र करी तो मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला कि अरे वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है और मैं भी इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। ऐसी कोई दूसरी बात तो मुझे लगा कि ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के अलावा मेरे फादर के एक्सपीरियंसेस से आई, और कुछ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बिजनेस की जर्नी में मिले, मेरे फादर के एज ग्रुप के लोग मिले जो कि इन टर्म्स ऑफ नॉलेज दे आर लाइट ईयर्स अहेड ऑफ मी। तो वो जो भी सीखा मैंने उसको सबको माइंड में चलता रहता था। तो मैंने कहा नहीं, इसको मैं पेन डाउन करता रहता हूँ। मैं उनको पेन डाउन करता रहता और नोट्स बनाता रहता था, स्क्रिबलिंग। और जब ये सारे बहुत इकट्ठे हो गए तो फिर मैंने उसकी सेग्रीगेशन करी, फिर उसको चैप्टर वाइज बनाया। मैंने कहा अब ये एक बुक के फॉर्म में लोगों के साथ शेयर किया जाए। Wonderful. And writing a book, generally can be a very daunting task, especially for the first timers. तो इस राइटिंग के प्रोसेस के बारे में बताइए, क्या चैलेंजेस आए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ यू राइटिंग दिस एंड व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रू आउट दिस होल जर्नी? देखिए 2 बार तो चश्मे का नंबर बढ़ गया। तो ये एक छोटा सा चैलेंज कह लीजिए, बिकॉज बिफोर दैट आई डिडंट हैव माय दिस स्पेक्स। मगर ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मेजर चैलेंजेस ये आए कि आपको इनिशियली करेक्ट गाइड करने वाला पर्सन आपको नहीं मिलता है। या तो आप किसी ऑथर पे चले जाएं जो आपके कहीं रेफरेंस से आपको मिल जाए, अगर वो बहुत फेमस बहुत नोन ऑथर होगा वो शायद आपको पूरा फुली गाइड ना करे। और अगर आप किसी एक एमेच्योर से बात कर रहे हैं तो वो उसने जो अपना हिडन ट्रायल किया वो आपको बता देगा। तो अल्टीमेटली 50% आपका अपना हिडन ट्रायल रहेगा, जो मेरा भी रहा। और मैंने इसको बहुत बार इम्प्रोवाइज किया, और आप यकीन मानिए मैंने इतनी बार लिख के कागज फाड़े और फिर लिखा। और हाँ, उससे मुझे ये भी एक मिला प्लस पॉइंट की वो चीज़ इम्प्रूव होती गई। और ऐसी एक, क्योंकि मुझे हमेशा से मेरे माइंड में ये था कि मुझे बुक जो लिखनी है वो
सिंप्लीफाइड टर्म्स में लिखनी है, क्योंकि मैंने खुद बहुत ऐसी किताबें पढ़ी हैं, फाइनेंस की पढ़ी हैं, जिनको आप 5-10 पेज के बाद आप देखोगे कि उसमें बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स एंड परसेंटेजेस और डाटा, और यूएस में 1932 में सेंसेक्स का इंडेक्स का रेट, अरे मुझे क्या करना है कि उसमें क्या परसेंट थी, क्या था, मुझे तो सीधे सीधे एक बात समझ में आनी चाहिए जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो उन कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को हटा के मैंने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, तो किसी चीज को आपको बहुत सिंपल बनाना हो ना, तो उसमें आपकी ज्यादा मेहनत लगती है। आपको एज इट इज अपनी बात कह देनी है, तो वो आपके लिए बहुत सिंपल है। एब्सोल्युटली। तो ये चैलेंज था और टाइम कंज्यूमिंग रहा, क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम दैट ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की सारा हाथ से ही लिखता रहा रजिस्टर में, फिर बाद में उसको मैंने कंप्यूटर में डाला, फिर बाद में उसको मैंने खुद एडिट किया, फिर मैंने उसको एडिटर्स को दिया। और मुझे एक कह लो मेरी इनसिक्योरिटी थी, मुझे लगता था यार कहीं कुछ कॉपी ना हो जाए, तो मैंने आधी बुक एक एडिटर को दी, आधी बुक दूसरे एडिटर को दी, और फिर जब दोनों से एडिट होके आ गए पूरे चैप्टर्स, फिर मैंने उसको फाइनल कंपाइल किया, फिर एक फाइनल गो थ्रू किया। ये सब चैलेंजेस थे जो कि इतने तो आएंगे ही अगर आप जेन्युइनली कोई बुक लिखोगे। देखिए कई लोग कहते हैं कि एक टिकिंग द कॉलम, यार आई वांट टू बी एन ऑथर, और ऐसे करना है तो वो तो हो जाएगा, उसमें ज्यादा चैलेंज नहीं है। लेकिन आपको जेन्युइनली एक पूरा फुल जस्टिस करना है बुक के साथ, तो ये चैलेंजेस आएंगे। और ये किताब लिखने का प्रोसेस, दिस कैन बी अ प्रीटी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। सो हाउ वुड यू से हैज दिस प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड पब्लिशिंग अ बुक impacted your personal and professional life? Yeah, definitely. I think I should have done it earlier because it really impacted. मुझे नहीं पता था कि आप एक उस क्लास में आप ऐड हो जाते हो। मैंने हर जगह तो मैं नहीं बताता हूँ कि भाई मैंने बुक लिखी है, लेकिन कहीं पर इस टाइप का कोई जिक्र आ गया। एक मैं किसी गवर्नमेंट कंपनी में किसी डायरेक्टर फाइनेंस से मीटिंग थी, तो वहां पर ही वॉज टेलिंग अबाउट द ब्लॉग्स दैट ही हैज रिटन। तो जो मेरे साथ गए थे उन्होंने जिक्र कर दिया, जी सर इन्होंने भी बुक लिखी हुई है, और एक रखी हुई थी कार में डिक्की में। तो फिर देन एंड ही रियली एक्नॉलेज्ड इट वेरी वेल, एंड फिर बोले नहीं आप मंगा लीजिए। मैंने बुक ऊपर मंगाई, उनको दी, उन्होंने किताब के साथ मेरे साथ फोटो ली। तो एक दैट इज अ रियली गुड फीलिंग, एंड then you feel very good कि at least you are sharing some valuable information with people. You are giving something to the people who really needs it and they want it. You're sharing your thoughts and your life experiences at one time in that book. Yes. क्योंकि ये practical, ये book बड़ा आयरॉनिकल टर्म है, बुक, ये बुकिश नहीं लगेगी क्योंकि इसमें बुक वाले कोई चीज नहीं है, इसमें रियल लाइफ के केस स्टडीज हैं। इट हैज ऑल दी एक्चुअल केस स्टडीज वेयर हाउ somebody got trapped and then he lost money and then he found the resolution and then he recovered it. छोटे छोटे केस स्टडीज है, कोई 2 पेज का, कोई 3 पेज का एग्जाम्पल है। तो उसमें आप अगर एक भी कोई चीज आपको हेल्पफुल कर पाई और आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपने लॉस से बच पाए, तो आई विल बी रियली थैंकफुल टू गॉड कि इट हैज डन द जस्टिस। Wonderful. And as a first time author, Tarunji, what surprised you most about the publishing industry, and what advice would you give to other aspiring authors? ओके, या देखिए स्टार्ट तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री से ही, इनिशिएट तो वहीं से ही हुआ कि माय वाइफ अटेंडेड अ सेमिनार समवेयर एंड दे रश यू ना कि नहीं, यू रजिस्टर इमीडिएटली एंड इन दिस पैकेज। तो इनिशिएट वहीं से हुआ, क्योंकि क्या होता है कि आप को अगर डाउटफुल हो ना आप कहीं पर किसी चीज में और आपको करनी है और वो चीज बहुत बड़ी है और अमाउंट बहुत छोटा है, तो आप दे दो वो अमाउंट, आप रजिस्टर करा दो। 2, 4, 5, 10 हजार रुपए में कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि उससे जो आप इतने सालों से डिले कर रहे हो ना, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। Right. So, and lastly, Tarunji, how important is it to have a daily routine to achieve any kind of success in life? कितना important है ये? Yes, I had also realized this, that unless and until you maintain the continuity, you cannot be at that level what you have been conceptualizing. And you call it daily routine or you make it weekly, but you have to go by that blueprint. आपका road map ready होना चाहिए। And एक रशियन proverb है कि plan your work then work your plan.
तो इसी तरह आपका डेली या फोर्टनाइटली व्हाटएवर रूटीन एंड कॉन्टिन्यूटी, रिपीटिशन। तो रिपीटिशन से आपकी एक प्रोफिशिएंसी भी आ जाएगी, उसमें आपकी एक एक्सपर्टाइज भी बन जाएगी। और आप कोई ट्रेड देख लीजिए, कहीं आप मूवीज में देख लीजिए, जो गुड एक्टर्स हैं वो वही चीज कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। कोई वो ब्रेक भी लेते हैं तो उस टाइम में भी वो वही चीज कर रहे होते हैं। तो इसमें भी आपका चाहे बिजनेस रिलेटेड टू फाइनेंस हो या प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, सो यू शुड चॉक आउट अ शेड्यूल, अ प्लान एंड देन गो कॉन्टिन्यूस इन दैट नॉन स्टॉप। एक बहुत टाइम तक आप कॉन्टिन्यूसली चलते रहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So plan your day and work your plan. That's the ideal mantra. So thank you so much, Tarunji, for sharing your entrepreneurial journey and the creative process behind your first book. We wish you continued success in all your future endeavors, both in business and the world of literature. Thank you so much. This kfckaizen.com is the website for the financial consultancy, and you can follow me by author Tarun V. Kapoor also, and hope to connect with you guys and share what I have learned, and hope to learn something from you, because everyone has got something to teach to each other. Thank you. Wonderful. Thank you, Tarun ji. So friends, Tarun ji से बात करके आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला. Please write in the comments below your top 3 learnings. And if you too are struggling to maintain a daily routine, then reach out to me at my numbers mentioned below and let me personally coach you and train you so that you can achieve what you always aspired for in any area of your life, be it health, wealth, relationship, career, or even money. Please subscribe to my channel if you haven't done so yet. Please like the video if you learned something new today, and also share it with your friends and family so they too can learn and get inspired. Please take good care of yourself and keep smiling till I bring you another inspiring story. Namaste and Jai Hind.